وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہمارے ان ویڈیوز میں ہمیں نورانی قاعدے کے قاعدوں کو، یعنی تجوید کے قاعدوں کو سمجھ کر قرآن کو بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ چلو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں دعا پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تختیوں کو جانے سے پہلے ہمیں سمبلز پہچان لیں گے، یعنی علامات، جو عربی میں تجوید کو جاننے سے پہلے علامات جاننے بہت ضروری ہے۔ ان علامات کو ہمیں سب سے پہلے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ چلو اس علامت کا نام ہے زبر۔ زبر زبر، زیر زیر زیر، پیش پیش پیش، دو زبر دو زبر، دو زیر دو زیر، کھڑا زبر کھڑا زبر، کھڑی زیر کھڑی زیر، دو پیش دو پیش، الٹا پیش الٹا پیش، جزم جزم، تشدید تشدید، بڑی مد بڑی مد، مد مد۔ چلو تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں، یعنی انگلش میں جیسے A B C D الگ الگ لکھتی نا، تو جب اسے الگ الگ لکھتی، عربی میں بھی اسی طرح الفابیٹ جب الگ الگ لکھتی نا تو اسے بولتی مفردات۔ ٹھیک ہے، چلو میں جو ہے ہر حروف کو پہلی مرتبہ پڑھتی ہوں، دوسری اور تیسری مرتبہ تم نے کیا کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے۔ غور سے سنو اور جو ہے بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کرو۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف، اسے الیف نہیں پڑھنا، الف الف، با با با، تا تا تا، سا سا سا، جیم جیم جیم، ہا ہا ہا، خا خا خا، دال دال دال، زال زال زال، را را را، زا زا زا، سین سین سین، شین شین شین، صاد صاد صاد، ضاد ضاد ضاد، طا طا طا، ظا ظا ظا، عین عین عین، غین غین غین، فا فا
ف قاف 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 کاف 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 لام 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 میم 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 نون 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 واو 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 ها 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 حمزہ 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 یا 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 چلو یہ پورے ہمارے جو ہے مفردات ختم ہوئے. امید ہے کہ تمہیں میرے پیچھے جو ہے ریپیٹ کر دیں. اگر ریپیٹ کریں گے بار بار تو جو ہے حروفوں کو سمجھ کر اس کے مخرج کو سمجھ کر پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. بار بار آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. تو ابھی چلو نقطوں کی پہچان کریں گے. نقطے یعنی جو ڈاٹس ہوتی نا جو ہے ابھی ہم نے جو ہے بہت سے جو ہے نیو لرنرز کو کیا ہے مشکل ہوتا ہے کہ کون سا حروف جو ہے کس طرح سے پڑھنا ہے, تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان کو کیا کرنا ہے نقطوں کے ذریعے سے پہچان لینا ہے. کوئی لیٹر رہتا ہے کہ جو ہے لیٹر کے جو ہے نیچے نقطہ رہتا ہے, کوئی لیٹر ایسا رہتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نقطے رہتی, کسی کے اوپر جو ہے 3 ڈاٹس رہتی, کسی کے اوپر 1 رہتا ہے, کسی کے نیچے 2 رہتی. تو جو ہے لکیر کے نیچے جو ہے یہاں پر 1 نقطہ ہے. تو یہاں پر اب تمہیں دیکھ لیو کہ جو ہے کون سا ایسا لیٹر ہے کہ جس کے نیچے جو ہے نقطہ ہے یعنی ڈاٹ ہے, تو وہ کون سا لیٹر ہے با ہے. تو اسی طرح سے ہر لیٹر کے نہیں, لام کے نہیں ہوتا, ہا کے نہیں ہوتا, اسی طرح سے جو ہے واو کے نہیں ہوتا, لیکن کچھ لیٹرز کے نقطے ایسے رہتی کہ جس کے ذریعے سے ہمیں آسانی سے پہچان لیتا. تو جو ہے لیٹر کے اوپر جو ہے 2 نقطے رہتی, وہ کون سا لیٹر ہے, تا ہے. اسی طرح سے ہمارا قاف ہے. ٹھیک ہے, تو ان نقطوں کے ذریعے سے اگر تم جو ہے تکلیف ہو رہی ہے تو نقطوں کے ذریعے سے پہچان لیو کہ جو ہے دیکھو یہ با ہے, با کے نیچے جو ہے 1 نقطہ آتا ہے. یہ جو ہے ہمارا تا ہے, تا کے اوپر جو ہے 2 نقطے رہتی. جو ہے 3 نقطے والا حرف کون سا ہے, تا ہے. اسی طرح سے جو ہے یہ جیم ہے ہمارا, اس کے جو ہے بیچوں بیچ میں جو ہے کیا رہتا ہے, ڈاٹ رہتا ہے, نقطہ رہتا ہے, تو اسے کیا بولتی ہمیں جیم بولتی. اس کے اوپر دیکھو 1 نقطہ ہے, تو وہ کیا ہو گیا, خا ہو گیا. صاد کے اوپر نقطہ نہیں ہے. اب جو ہے نقطہ اگر جو ہے اسی صاد کے اوپر نقطہ ڈال لیتی تو وہ کیا بن جاتا ہے, ضاد بن جاتا ہے. یہاں پر دیکھو 1 نقطہ ہے تو وہ کیا ہو گیا, غائن ہو گیا. یہاں پر 1 نقطہ ہے, یہ کیا ہو گیا, فا ہو گیا. یہ کیا ہے, قاف ہے, کیونکہ یہاں پر کیا ہے 2 نقطے ہیں. اس کے بیچوں بیچ میں کیا ہے 1 نقطہ ہے, تو یہ کیا ہوا, نون ہوا. ٹھیک اسی طرح سے جو ہے اس کے نیچے 2 نقطے ہیں, یہ لیٹر کے نیچے کیا ہے 2 نقطے ہیں, تو اسے کیا بولتی, یا. یہ بھی کیا ہے, اس کے نیچے 2 نقطے ہیں, تو یہ کیا ہو گیا, یا ہو گیا. اسی طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے, نقطوں کے ذریعے سے, ڈاٹس کے ذریعے سے ہمیں کیا ہے لیٹرز کو پہچاننا ہے. نقطوں والا پوائنٹس تو ہمارا پورا ہو گیا. ابھی دیکھو عربی میں جو ہے کچھ لیٹرز ایسے رہتی کہ ان کو ایک دم موٹا پڑھنا پڑتا ہے, جو ہے ایک دم جو ہے منہ بھر کو جو پڑھتی نا, ان لیٹرز کو بولتی حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ یعنی ان لیٹرز کو کیا کرتی, حروف تہجی کو موٹا پڑھتی, یعنی باریک نہیں پڑھتے ہمیں, ان لیٹرز کو ایک دم موٹا پڑھتی. اب وہ کون سے ہیں, وہ ٹوٹلی 7 ہے. سب سے پہلے دیکھو یہ ہمارا آ گیا خا, خا خا, یہ کیا ہے, ہمیں موٹا پڑھنا ہے. یہ ہو گیا پہلا حروف مستعلیہ میں سے ایک جو ہے, ایک حرف ہے جس کو ہمیں ایک دم موٹا پڑھنا, پتلا نہیں پڑھنا. پتلا دیکھو یہ تا ہے نا, میں ایک دم پتلا پڑھ رہی ہوں, تا سا دال پتلا پڑھ رہی ہوں, لیکن اسے کیسا پڑھ رہی ہوں, بولو خا خا, ایک دم منہ بھر کو پڑھ رہی ہوں میں, خا خا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا موٹا والا حرف ہے. ٹھیک اسی طرح سے جو دوسرا ہمارا حروف مستعلیہ میں سے حرف ہے وہ ہے
सौद, सौद एकदम मोटा पढ़ना है इसे। सी हल्का पढ़ना, पतला पढ़ना, लेकिन सौद जो है मोटा पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा हर्फ मुस्तालिया में से है। ठीक इसी तरह से बौद, बौद, बौद एकदम मोटा पढ़ना है, बौद, बौद। उसके बाद में जो है ये भी हमारा क्या है, हुरूफ मुस्तालिया में से एक है। वो क्या है, तो, 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 तो। ये हमारा ता है, एकदम इसे पतला पड़ती, लेकिन ये क्या है, तो है, तो, तो। ठीक है, इसके बाद में क्या है, ये व, व, व। ये भी क्या है, हुरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसे हमें कैसा पढ़ना है, एकदम मोटा पढ़ना है, व, व। उसके बाद में जो है ये हमारा गाइन है, गाइन, गाइन, गाइन एकदम मोटा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में जो आखिरी हमारा हुरूफ मुस्तालिया में से है वो है क़ाफ, 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 क़ाफ। टोटली हमारे कितने हो गए, 7 हुरूफ मुस्तालिया में से हैं। नंबर 1 क्या है, ह, ह, ह एकदम मोटा पढ़ो। के बाद में सौद, सौद, सौद। के बाद में दौद, दौद, दौद। बाद में क्या है, तो, 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 व, 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 गैन, 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 क़ाफ, क़ाफ, क़ाफ। ये टोटली क्या है, 7 है। इनको हमेशा क्या करना है, हमें एकदम पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, इसे हुरूफ मुस्तालिया बोलती हैं। इनके अलावा और भी 2 हर्फ ऐसे हैं जिनको क्या करती, कभी मोटा पढ़ती कभी बारीक पढ़ती, यानी कुछ रूल्स हैं, कुछ शरायत है। अगर वो शरायत पर पूरे उतरती तो उसमें क्या करना है, हमें बारीक पढ़ना है, या तो फिर जो है कुछ ऐसे शरायत हैं कि अगर वो पूरे हो रही तो जो है मोटा, यानी कभी मोटा कभी बारीक। बाद में वो पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है किन औकात में हमें मोटा पढ़ना है या किन औकात में इसे बारीक पढ़ना है। लेकिन वो 2 लेटर्स कौन से हैं कि कभी बारीक पढ़े जाती कभी मोटे पढ़े जाती, वो है हमारा रॉ, रॉ। पढ़ते वक्त में आमतौर पर अल्फाबेट्स की शक्ल में अगर हमें पढ़ रही तो इसे मोटा पढ़ना, जिसे रॉ, रॉ, रॉ एकदम मोटा पढ़ना है इसे। लेकिन जो दूसरा हर्फ है हमारा लाम, इसे पढ़ते वक्त में बारीक पढ़ना, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं, अगर वो रूल्स अगर जो अप्लाई हो रही तो क्या पढ़ना है, इसे मोटा पढ़ना है। लेकिन आमतौर पर लॉम नहीं पढ़ना, लैम एकदम पतले से पढ़ना है इसे, लैम, लैम, लैम। आमतौर पर जब हमें लेटर की शक्ल में पढ़ती तो इसे बारीक नहीं पढ़ना, मोटा पढ़ना, रॉ, 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 मोटा पढ़ना, एकदम मोटा पढ़ना। इसे जो है बारीक पढ़ना, इसे मोटा पढ़ना। तो आप समझ में आया नहीं कि जो है 7 लेटर्स हैं जिनको हमें मुकम्मल तौर से जो है एकदम मोटा पढ़ना, लाम और रा, लाम और रा, जिसे कभी बारीक पढ़ती कभी जो है मोटा पढ़ती। लेकिन अल्फाबेट्स की शक्ल में पढ़ रही यानी तन्हा पढ़ रही तो इसे कैसा पढ़ना है, इसे मोटा पढ़ना है, इसे क्या है बारीक पढ़ना है। ठीक इसी तरह से इनके अलावा 7 + 8 2 पूरे 9 है ना, इनके अलावा बाकी जो भी हमारे जो है अल्फाबेट्स हैं, हुरूफ हैं, इनको क्या करना है, एकदम पतला पढ़ना है। जैसे अलिफ, बा, ता, खासकर आइन को क्या करती, मोटा पढ़नी, आइन, आइन ऐसा मोटा पढ़ने की कोशिश करती है, हमें नहीं, एकदम पतला पढ़ना है, इसे आइन पढ़ना है। ठीक है, अब जो है ये क्या है, हुरूफ हल्की में से है, हलक से निकालना जरूर है लेकिन मोटा नहीं पढ़ना है, आइन, आइन, आइन इस तरह से पढ़ना है। ठीक, जो है के बाद में हमारा जो दूसरा हमारा वाला पॉइंट है वो ये है, मीम को और नून को पढ़ते वक्त में गुन्ना नहीं करना, यानी नाक में आवाज को छुपाना नहीं, एकदम मीम नून, मीम नून इस तरह पढ़ना। नून नाक में देखो मैं आवाज लेको जा रही हूँ, यह गलत हो जाता, मीम यह गलत हो जाता, मीम नून जो है बगैर नाक में आवाज लिए हमें पढ़ना है। जब अल्फाबेट्स की शक्ल में पढ़ रही तो, यानी तन्हा पढ़ रही हमें तो कैसा पढ़ना,
मीम नून, इस तरह से पढ़ना। अच्छा, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है मखरज के लिहाज से, यानी मखरज यानी जहां से हमें अल्फाज को निकालती, मिसाल के तौर पर बा है, बा कहां से निकाल रही हमें, हमारे दो होंठ यूज हो रही, तो क्या है वो होंठ क्या हुए हमारा मखरज हुआ, बा का मखरज हुआ। इसी तरह से जो भी हर्फ जिस जगह से, कुछ है क्या हलक से निकलती, कुछ जो है जबान की नोक से निकलती, कुछ जबान की जड़ से निकलती, तो ये तमाम जो है उसके मखरज कहलाती। जो हुरूफ जहां से निकलता है वो उसका मखरज होता है। अब चलो कि जो है कौन सा हुर्फ कहां से निकलता है, यानी उसका मखरज क्या है जानेंगे इंशाअल्लाह। अब देखो यहाँ पर 3 लेटर्स है, सा, जाल, व, ये तीनों का मखरज एक ही है, यानी हमारी जबान है ना, जबान उसकी जो टिप है ना, उसको लेकर जाको ऊपर के जो दांत है नी, ऊपर के दांत के राइट साइड भी करे जा, लेफ्ट साइड भी करे जा, लेकिन लेफ्ट साइड जो है हमारे लिए इजी रहता है, तो ऊपर के दांत के किनारे यानी नीचे वाला, ऊपर के जो दांत है ना उसमें जो लेफ्ट वाला दांत है उसमें भी जो है जो नीचे ही ना, नीचे का कॉर्नर है ना, नीचे का टिप, वहां पर ले ले जाको तुम्हारी जबान की नोक अगर तुम्हें लगाती तो ये तीनों हर्फ अदा होती। लेकिन ये बात याद रख लो कैसा जाल जो है एकदम पतले पड़े जाती, लेकिन व जो है एकदम मोटा पड़ा जाता। क्यों? क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। सा, जाल, व, सा, जाल, व ना, ऊपर वाले जो दांत है ना उसके दांत के किनारे से लगाए तो हमने क्या होता है, ये जो है अदा होते हैं। अब देखो हमारा सीन, सौद और जा, ये तीनों हुरूफों का मखरज एक ही है, मगर देखो सौद को क्या है मोटा पढ़ना है, सीन और जा को हल्का पढ़ना है। जा की आवाज थोड़ा बुलंद होती, थोड़ा ऊंचा जाती है, लेकिन सीन एकदम हल्का पढ़ना है, सौद एकदम मोटा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारे हुरूफ मुस्तालिया में से एक हर्फ है, तो इसे क्या करना है मोटा पढ़ना है। चलो इसे प्रैक्टिस करो, सीन, सौद, ज, सीन, सौद, ज, इन तीनों में सीटी की आवाज जैसा पैदा होती है, ये एकदम एक सीटी की आवाज है, इन तीनों के हुरूफों में क्या है सीटी की आवाज पैदा होती है। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमारा ता, दाल, तो, ये तीनों जो है इनका तीनों का मखरज एक ही है, लेकिन ता और दाल एकदम हल्का पढ़ना है। जहां से दो लेटर्स अदा होती ना, ता और दाल तो तुम ना इजी ना, वहीं से जो है तुम्हें जो है ता को अदा करो, लेकिन ये ता जो है मोटा पढ़ना, एकदम मोटा पढ़ना। कैसा? ता, 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 दाल, ता, समझ में आया या ना? ठीक इसी तरह से देखो हमजा और हा है, हमजा और हा, यानी क्या कर रही हूं मैं इसको हलफ से अदा कर रही हूं, हमजा हा, वो भी क्या है आखिरी हलफ से अदा कर रही हूं। देखो हलफ के 3 हिस्से कर लेना हमें, ये जो है इसमें थोड़ा वाइब्रेशन जो है पैदा होता है, हमजा और हा में हलफ के 3 हिस्से कर ले तो सबसे नीचे वाला जो हरफ जो सीने की तरफ है ना, वहां थोड़ा वाइब्रेशन भी तुमना पैदा होता है। तो जो है हमजा हा, ये क्या है हरूफ है, जबान इस्तेमाल नहीं होता, हमजा हा जो है आखिरी हलफ से अदा होने वाले ये हर्फ हैं 2। ठीक इसी तरह से आइन और हा जो है हलफ का जो दरमियानी जो है हलफ रहता है ना, हलफ के 3 हिस्से कर लियो बोलीना में, तो जो है आखिरी हलफ से जो है हमजा और हा अदा होती। ठीक इसी तरह से जो है जो वस्ती हलफ होता है ना, जो दरमियान वाला मिडिल पार्ट है ना, उसमें जो है हमारा आइन और हा अदा होता है। जैसे मिर्ची खाने से हा की आवाज पैदा होती है नहीं, उसी तरह से जो है हमारा ये हा अदा होता है, हा, हा, आइन, हा, ये क्या है हा है, ये है हा, 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 ये क्या है आइन है, आइन है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने से आ जाता है आइन, आइन हमारा जो वस्ती हलक है यानी दरमियानी हलक है उससे ये अदा होता है, आइन, 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 आइन। ठीक है, लेकिन ये मोटा नहीं पढ़ना। देखो ये पूरे जो मैं जितने भी बता रही हूँ ये एकदम पतले वाले हरूफ है। मैं बोली ना सिर्फ 7 ऐसे हरूफ हैं जिनको मोटा पढ़ना है, वो भी जो है रा और लाम की सूरत में कभी बारीक कभी मोटा पढ़ना।
लेकिन इसके अलावा जितने भी हरूफ हैं उसमें क्या करना है, हमें एकदम पतला पढ़ना है। आइन को भी क्या है, मोटा नहीं पढ़ना है, पतला पढ़ना है। आइन हा, आइन हा, आइन हा, आइन हा। ये भी क्या है, हरूफ हल्की में से, इसमें जुबान का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ हलक का इस्तेमाल होता है। लेकिन जहां पर से हमें आइन अदा करती है वहीं पर से हमें क्या है, हा अदा करना है। इन दोनों में एक बात जो है मुआफ़क़त रखती है, वो क्या है, ये दोनों जो है मोटे हरूफ है, यानी इनको मोटा पढ़ना है। आइन को भी मोटा पढ़ना है, हा को भी मोटा पढ़ना है। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमारा काफ और काफ है। काफ को मोटा पढ़ना, काफ को बारीक पढ़ना। काफ, 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 काफ। ये देखो हमारा हा है, ये हा के बाद आता है ना वो हा, हाँ वो हरूफ हल्के हलक से निकालती। लेकिन इसमें देखो जबान की जड़ इस्तेमाल होती है, इसमें जबान का, हमारी जबान की नोक है, ठीक उसके अपोजिट में जबान की जड़ होती है, उसकी रूट रहती है ना, उस रूट को हमें ले जाकर तालू से लगाए, ऊपर के तालू से जो है लगाती, तो तब जाकर काफ, काफ, काफ इस तरह से अदा करती। का एकदम हल्के से, के इंग्लिश में लेटर के रहता है ना, उसी तरह का, के, इस तरह ये इजी है। लेकिन ऑफ में थोड़ी मेहनत करना पड़ता है हमें, एकदम इसे मोटा पढ़ना। ऑइन, हा, ऑफ, 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 मोटा पढ़ना। ऑफ, ऑफ। हा में जबान की जड़ इस्तेमाल नहीं होती, ऑफ में जबान की जड़ इस्तेमाल होती है। ठीक है, ऑफ, ऑफ मोटा पढ़ना, कैफ हल्का पढ़ना। ठीक इसी तरह से हमारा क्या है, बौद है, बौद है, बौद। ये कैसे अदा होता है बोले तो, ज़बान की जो कड़वट है ना, उस कड़वट को ले जाको ऊपर के जो हमारे दाढ़ हैं, दांत नहीं बल्कि दाढ़ है, चाहे लेफ़्ट साइड हो चाहे राइट साइड के हो, लेफ़्ट साइड में अदा करना थोड़ा इजी रहता है। तो जो है ऊपर की जो दाढ़ है उसके जड़ से ले जाको जो हमारे ज़बान की करवट है, उस करवट को ले जाको लगाए तो क्या होता है, दौद अदा होता है। दौद, दौद। याद रहे कि हमारी ज़बान की टिप जो नोक है वो काम ही नहीं लगना। ठीक है, दौद को एकदम मोटा पढ़ना है, दौद, दौद। अभी चलो थोड़ा बहुत जो है रिवाइज कर लेंगे। क्या बोलो, हरूफ मुस्तालिया टोटल जो है कितने हैं, 7 है। वो कौन से हैं, ख, सौद, दौद, तौ, व, आइन, क़ाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह जब हमारा रूल्स अप्लाई होती तो वो रूल्स अप्लाई करने के वक्त में ये जो है तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। अच्छी तरह से इसे क्या करना, रट लेना या बाय हार्ट कर लेना। ख, सौद, दौद, तौ, व, आइन, क़ाफ। टोटली कितने हैं ये, 7 है। बकिया के तमाम जो हमें क्या करना है, पतला पढ़ना है। सिर्फ रा और लाम की सूरत में क्या है, कभी बारीक पढ़े जाती, कभी मोटे पढ़े जाती। ये सा और इसी तरह से जो है सीन, सौद, इसमें फर्क पढ़ना। ये सा है, ये सीन है, ये सौद है। ठीक है, सौद ये मोटा पढ़ना। ठीक इसी तरह से जो है ये हा है, ये ऑफ है। हा, ऑफ, हा, ऑफ। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये क्या है, ये जा है, ये व है, व, व, जा, व। ठीक है, फर्क मालूम हो रहा है ना, जा, व, वैल एकदम हल्का पतला, वैल, वैल, जा, व, वैल। ठीक है, समझ में आया ना। इसी तरह से जो है हमें अच्छी तरह से जब फर्क करके पढ़ेंगे तभी हम ना जो है समझ में आता। रिपीट करो, जब भी मैं बोल रही हूँ 2-3 मरतबा मेरे पीछे जब तुम्हें रिपीट करती तो तुम ना भी जो है मखरज निकालना आसान हो जाएगा। अभी चलो देखो यहाँ पर इन्हों जो है इम्तिहान ले रही, यानी पूछ रही कि जो है तुम ना जो है लेटर्स की निशानदेही होगी कि नहीं की। अभी चलो ये क्या है, कौन सा लेटर है बोलो देखे जा। हाँ, तौ है। ये कौन सा लेटर है, सा। ये कौन सा है, सीन। ये कौन सा है, शीन। ये क्या है, सौद, जो मोटा पड़ती ना वो, सौद। ये कौन सा है, है। ये क्या है, ह, 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 क़ाफ, क़ाफ, वैल। ये क्या है, वैल। ये क्या है, जा।
ये क्या है? ضاد ضاد. ये व व व. अलिफ अलिफ. ये क्या है? आइन आइन. नून नून. बा बा. फा फा. गैन गैन. या या. ये क्या है? ता ता. मीम मीम. लाम लाम. दाल दाल. इन अदल बदल को देखो ही, ताकि जो है तुमने जो है लेटर्स की निशानदेही अच्छी तरह से हो जाए. ठीक है. ठीक इसी तरह से जो है मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें. अभी देखो, एक हर्फ की एक ही शक्ल नहीं होती, इसके कई शक्लें होती. देखो अलिफ बोले तो सिर्फ इसी तरह कुरान में नहीं आता, ये भी अलिफ विच ए भी अलिफ विच. ठीक इसी तरह से बा है तो ये भी बा है ए भी बा है, तो इसकी कुछ शक्लें होती. ऐसा नहीं कि जो है अभी में जो है हमें पढ़ लिए कि नून, तो इसी तरह से नून कुरान में आता है, बिल्कुल नहीं. नून की जो है कई शक्लें होती, उनकी शक्लों को देख को पहचान लेना कि वो भी नून है बिल्कुल. ठीक है. अलिफ अलिफ की दो शक्लें. बोलो अलिफ अलिफ की दो शक्लें. बा बा की दो शक्लें. ता ता की तीन शक्लें. ये भी ताज ये भी ताज ये भी ताज. कुरान में कहीं पर भी अगर इस तरह से ता आता है तो हमें क्या करना है? इसे ता कंसिडर करना. जीम जीम की एक शक्ल. दाल दाल की एक शक्ल. आइन आइन की दो शक्लें. आइन आइन की दो शक्लें. फा फा की दो शक्लें. फा फा की दो शक्लें. काफ काफ की दो शक्लें. काफ काफ की दो शक्लें. लाम लाम की दो शक्लें. लाम लाम की दो शक्लें. मीम मीम की दो शक्लें. मीम मीम की दो शक्लें. नून नून की दो शक्लें. नून नून की दो शक्लें. हा हा की तीन शक्लें. हा हा की तीन शक्लें. ये भी एक शक्ल, ये भी एक शक्ल, ये भी एक शक्ल. हा हा की तीन शक्लें. हमजा हमजा की दो शक्लें. हमजा हमजा की दो शक्लें. ये आइन है, ये हमजा है. या की दो शक्लें. या के नीचे अगर दो नुक्ते हैं तो इसे क्या करना? या पढ़ना. ये भी याद है, ये भी याद है. या की दो शक्लें. ठीक है. उम्मीद है कि आप सबको जो है नूरानी कायदे का यह कायदा अच्छी तरह से समझ में आ गया, जिसे जो है मुफर्रदात कहते हैं. उम्मीद है कि आप सबको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जो है वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. उम्मीद है कि आप सबको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जो है वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.